गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर CCL 105 दैट इज alkyl and aryl halides. As the name indicates, alkyl halides are derivatives of alkanes in which one or more hydrogen atoms are replaced by halogen. So compound obtains by replacement of one or more hydrogen atom of a hydrocarbon with corresponding number of halogens are known as halogen derivatives. Now they are further classified as mono, di, tri halogen derivatives depending on the number of halogen atom present. If only one halogen atom is present in the molecule, then it is that is mono derivative of alkane. When two halogen atoms are present, then they are known as dihalogen derivative of alkanes. So depending upon the number of halogen atoms per molecule, they are defined they are further classified as monoderivative, diderivative, triderivative or polyhalogen derivative of hydrocarbons. Now depending upon the nature of parent hydrocarbon, whether it is aliphatic or aromatic, these halogen derivatives are further classified as aliphatic halogen derivative or halogen derivative of aromatic hydrocarbon. If halogen atom is attached to some aromatic center, then that derivative is known as halogen derivative of aromatic hydrocarbon. However, if halogen is attached to some aliphatic chain, then that derivative is known as aliphatic halogen derivative. Now aliphatic halogen derivatives, these are halogen derivative of aliphatic aliphatic hydrocarbons. Now depending upon the nature of aliphatic hydrocarbon, whether it is saturated or unsaturated, in case of unsaturation, whether it contains double bond or triple bond, they are further classified as haloalkanes, haloalkenes or haloalkynes. First of all, we will discuss about haloalkanes. Haloalkanes are halogen derivatives of alkanes. Now if one hydrogen atom is replaced by halogen, then it is known as mono halogen derivative. If two hydrogens are replaced, then dihalogen derivative. If three hydrogen are replaced, then trihalogen derivative. So halogen derivative like CH3Cl, chloromethyl, dichloromethyl or trichloromethyl, which is also known as chloroform, obtained by replacement of one or more hydrogen atom of alkanes. These compounds are very reactive and undergo numerous reactions which are used in the formation of large number of compounds. Monohalogen derivatives like CH3Cl, they are also commonly known as alkyl halides. Now aliphatic hydrogen derivatives, other category is of haloalkenes. Haloalkenes are halogen derivative of alkene, means one or more hydrogen atom of alkene is replaced by halogen atom. Monohalogen derivative of alkenes are also known as alkynyl halides. This is simplest monohalogen derivative of alkene and is known as vinyl halide. Simple ethene, and derivative of ethene is known as vinyl halide. This derivative of propene is known as allyl halide. With respect to double bond, this is allylic position, that is why this is simplest allyl halide. Next is haloalkynes. As name indicates, these are halogen derivative of alkynes. Monohalogen derivative of alkynes are known as alkynyl halides. The simplest alkynyl halide and its name is chloroethine. This is ethine and one hydrogen is replaced by chlorine, so the name is chloroethine. This is 3-chloropropane.
Next category is halogen derivative of aromatic hydrocarbons. These are the halogen derivatives obtained by replacement of one or more hydrogen atom of aromatic hydrocarbon by halogen atom. अब ये aromatic compound है, उसकी एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जब रिप्लेस हो जाएगी हेलोजन से, तब हम उसको कहेंगे वो क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. अब उनको हम फर्दर, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इन विच हाइड्रोजन of aromatic ring is replaced by halogen atom like chlorobenzene, orthobromotoluene, in which the halogen atom is directly attached to benzene ring. These are known as nuclear derivatives. Other category is side chain substituted derivative. Here the halogen atom is linked to the side chain attached to aromatic nucleus. ये हमारा aromatic nucleus है, इसकी ये side chain है. Side chain के साथ क्या होगा, halogen atom attached होगा. Side chain derivative of aromatic hydrocarbons have reactivity similar to that of अल्काइल हैलाइड्स. जो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी है उसी तरह है साइड चेन डेरिवेटिव जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, उनकी रिएक्टिविटी है. वेयर एज न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स जो हैं जिसमें क्या है, हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन न्यूक्लियस के साथ, वो लेस रिएक्टिव है एंड अंडर को ओनली फ्लू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस. जो न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स हैं वो लेस रिएक्टिव हैं. जो साइड चेन डेरिवेटिव्स हैं उनकी रिएक्टिविटी सेम है एज दैट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. Now, what are alkyl halides? Alkyl halides are organic molecules containing a halogen atom bonded to sp3 hybridized carbon. जो हमारा alkanes है उसमें क्या होता है, कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है. अब alkyl halides में क्या होगा, जो हेलोजन एटम है वो क्या होगा, डायरेक्टली अटैच्ड होगा किसके साथ, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ. ये आपका alkane है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3. इसके साथ डायरेक्टली आपका क्या है, हेलोजन एटम अटैच्ड है. ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड्स. मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर नोन एज अल्काइल हैलाइड्स. जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, एल्केन्स का क्या होता है, CnH2n+2. अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी किससे, हेलोजन से, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1 and X, or simply we called Rx. Now alkyl halides are further classified as primary, secondary or tertiary depending upon the number of carbon bonded to carbon with halogen atom. अब ये जो कार्बन है इसके साथ क्या है, हेलोजन एटम अटैच्ड है. अब इस कार्बन का नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. अगर ये कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, यानी जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है फर्दर एक कार्बन के साथ और अटैच्ड होगा, तब वो क्या होगा, प्राइमरी. अगर वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच्ड होगा तो सेकेंडरी. और वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है वो फर्दर 3 कार्बन्स के साथ अटैच्ड होगा तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी. तो अल्काइल हैलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज अटैच्ड. इफ इट इज अटैच्ड to single carbon atom, further attached to single carbon atom, then it is known as primary alkyl halide. If carbon having halogen is further attached to 2 carbon atoms, then it is known as secondary alkyl halide. And if carbon having halogen atom is further attached to 3 carbon atoms, then it is known as tertiary alkyl halides. So alkyl halides are further classified as primary, secondary or tertiary depending upon the nature of the carbon atom to which halogen is attached. Now nomenclature of alkyl halides. In common system they are simply named as alkyl halide. Simplest
alkyl halide is methyl halide. Now alkyl group here is methyl group and halogen is chloride, so the name of this compound is methyl chloride. Simplest name, this is 2 carbon compound, and this group, alkyl group, is known as ethyl group, so the name of this compound is ethyl fluoride. This is isopropyl group. Now name of this compound will be isopropyl iodide. Now this is simplest alkyl, this alkyl group is known as secondary butyl, so the name of compound is secondary butyl bromide, and this is known as tertiary butyl bromide. नेम आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कौन सा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, उस अल्काइल ग्रुप का नाम दोगे, उसके बाद जो उसके साथ हैलोजन अटैच्ड है उसका आपने नाम देना है. तो ये तो था कॉमन सिस्टम जिसमें हम इनका नाम कैसे देते हैं, इन फॉर्म ऑफ अल्काइल हैलाइड. IUPAC सिस्टम में हम इनका कैसे नाम देते हैं, एज हेलो एल्केन. इसमें आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करोगे जिसमें जो आपका हैलोजन एटम है वो अटैच्ड होना चाहिए. जो आपका पेरेंट एल्केन है वो आपने ऐसे चूज करनी है जिसके अंदर हैलोजन इंक्लूडेड हो. लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन ऑफ द कार्बन एटम विच कैरीज द हैलोजन इज टेकन एज पेरेंट चेन. अब चेन की नंबरिंग इज नंबर फ्रॉम द एंड विच गिव्स द स्मॉलेस्ट नंबर टू द कार्बन कैरिंग द हैलोजन. आपने पेरेंट चेन चूज कर ली जिसपे क्या होगा, हैलोजन अटैच्ड होगा. उसके बाद आपने सेकंड स्टेप क्या होगा, आपने नंबरिंग करनी है. नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग उस एंड से करनी है जिससे आपका जो हैलोजन एटम है उस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. Next is the name of the halogen and the side chain along with their point of attachment are added before the name of parent alkene. Parent alkene से पहले आपने हैलोजन का नाम देना है और कोई साइड चेन है जो और उसकी जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो भी आपने मेंशन करनी है. अब अगर चेन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजन्स अटैच्ड है तो उनको नंबर देना है और उनको आपने कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. पहले आप क्या दोगे, उनको ऐसे नंबरिंग करोगे कि सबको क्या होना चाहिए, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए. और उसके बाद आपने जब नाम लिखना है तो आपने उसको उन जो आप हैलोजन एटम है उनको कैसे लिखना है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. फिर इफ 2 halides or 1 alkyl or halide are equidistant from end of chain, begin at the end nearer to the substituent whose name comes from first in alphabet. अगर चेन के 2 ग्रुप लगे हुए हैं दोनों एंड पे और दोनों क्या है, इक्विडिस्टेंस पे हैं, या तो दोनों हैलाइड ग्रुप दो हैलाइड ग्रुप लगे हुए हैं दोनों एंड पे, या एक एल्काइल एक हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है दोनों एंड पे. तो आपने चेन की नंबरिंग कैसे करनी है कि अगर उनका तो एंड का मतलब उनकी नंबरिंग क्या आ रही है, सेम आ रही है फ्रॉम बोथ एंड, तो आपने क्या करना है, उस सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा. जैसे आपका कंपाउंड है, ये कंपाउंड है. अब अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 और यहां से करोगे तो 1 2, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे सेकंड आ गया. तो नंबरिंग आपने कहाँ से करनी है, जहां से फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा. तो इसका नाम क्या होगा, 2 और 4 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 5 पे क्या है, ब्रोमो. अब B पहले आएगा और M बाद में आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 ब्रोमो 2,4 डाई मिथाइल हेप्टेन. कितने कार्बन की है, 7 कार्बन की. 7 कार्बन के एल्केन को बोलते हैं हम हेप्टेन. तो हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज की जिसके अंदर क्या होगा, आपका वो चेन आएगी, वो चेन चूज करेंगे जिसमें आपका क्या होगा, हैलोजन अटैच्ड होना चाहिए. फिर हमने नंबरिंग करनी है कि सबको क्या करें, मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 और इसको 6 मिलेगा, और उसका सम करेंगे तो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा. तो नंबरिंग हमें कहाँ से करनी होती है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. तो यहाँ आ गया 2 3 4, तो 2 और 4 पे आपके क्या है, मिथाइल. फिर आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करनी होती है. तो 5 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो 2 4 डाई मिथाइल. डाई ट्राई टेट्रा, ये जब आप नाम लिखते हैं उसमें ये डाई ट्राई टेट्रा ये अल्फाबेट
नहीं देखे जाते, क्या देखा जाएगा, M। तो 5 ब्रोमो 2,4 डाइमिथाइल कार्बन चेन कितने की है, 7 कार्बन की, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। अब ये जो आपका कंपाउंड है ये भी 7 कार्बन का है, तो नाम एल्केन कौन सा होगा, हेप्टेन। अब साइड चेन आपकी 2 है, 2 क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 1 क्या है, ब्रोमीन है। अब यहाँ पे 1 2 3 करें और यहाँ से 1 2, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपका क्या हो गया, ये वाला हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रोमो 4 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। अब इस कंपाउंड में उसी तरह 6 कार्बन का है, तो 6 कार्बन एल्केन क्या होगा, हेक्सेन। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सेकंड पे। अगर इधर से करेंगे 1 2 थर्ड पे आता है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ के आ गया सेकंड पे, तो 2 3 डाई क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। अब ये वाला जो कंपाउंड है, आपने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की तो फर्स्ट और सेकंड, इधर से नंबरिंग स्टार्ट की फर्स्ट और सेकंड, दोनों जगह से फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। फिर आपने क्या देखना है, अल्फाबेटिकली कौन सा आता है, यहाँ क्या हो गया ब्रोमो, यहाँ हो गया मिथाइल, तो बी पहले आता है कंपेयर टू एम, तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम ब्रोमीन साइड, तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्सेन। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है हैविंग हैलोजेंस, फिर आपने देखना है कि लोएस्ट सम चूज करते हैं, जो आपके सब्स्टिट्यूएंट सम को क्या होना चाहिए, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, और उसके बाद आप उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके नेमिंग करोगे। अगर दोनों साइड से, दोनों एंड से अगर सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर पोजीशन पे हैं, तब आपने क्या देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पहले आता है उस तरफ से आपने चेन की नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ये है नोमेनक्लेचर, सिंपलेस्ट कॉमन एंड IUPAC। कॉमन में हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड, IUPAC में हम कहते हैं हेलो एल्केन्स। ये सिंपलेस्ट है, तो ये हो जाएगा, अगर एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में कॉमन नेम करना है तो मिथाइल ब्रोमाइड, और अगर IUPAC नेम है तो ब्रोमोमीथेन। यहाँ इसका क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड यानी एंड प्रोपाइल क्लोराइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और IUPAC में नंबरिंग नेमिंग कैसे होगी, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह ये वाला जो कंपाउंड है, फिफ्थ कंपाउंड, ये क्या है, ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड भी कौन सा है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड यानी नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। और IUPAC सिस्टम में फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और IUPAC में 1 2 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पे ये क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और IUPAC नेम में क्या होगा, 1 क्लोरो, क्लोरीन पहले आता है तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये वाला कौन सा ग्रुप हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल, तो ये हो जाएगा टर्शरी, ये नियोपेंटाइल, तो इसका क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल आयोडाइड। अब यहाँ पे अगर हम नोमेनक्लेचर देंगे तो 1 2 3, ठीक है, तो 1 पे आयोडो, 2 डाइमिथाइल, और ये हो जाएगा प्रोपेन। ये जैसे आपको बताया था सिंपलेस्ट एल्किनाइल, तो ये हो जाएगा विनाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमोइथीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलाइल ब्रोमाइड, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रेफरेंस होती है डबल बॉन्ड को, तो 1 2 3 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। Now, what is type of isomerism shown by alkyl halides? Structural isomerisms, isomers क्या होते हैं, जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है, बस बट प्रॉपर्टीज क्या या स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसमें आपने पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाले पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आपको बताया था कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और कौन से होते थे, चेन हो गया, पोजीशन, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म,
टोटोमेरिज, तो डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज में। तो एल्काइल हैलाइड्स कौन कौन से स्ट्रक्चर आइसोमेरिज शो करेगा? एक तो होगा चेन आइसोमेरिज, जिसमें क्या होगा, जो आपकी चेन होगी कार्बन चेन हैविंग हैलोजन, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट नेचर ऑफ कार्बन चेन इज डिफरेंट। तो यहाँ इसके कौन सी है, ब्यूटाइल, तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड, और ये कौन सा हो गया, आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो ये शो करेंगे वो है पोजीशन आइसोमेरिज, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन पोजीशन हैलोजन एटम की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये वाला हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इसमें जो पोजीशन आइसोमेरिज शो करने के लिए मिनिमम 3 कार्बन एटम होने चाहिए, और चेन आइसोमेरिज शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन एटम होने चाहिए, 4 कार्बन एटम होने चाहिए। तो जो एल्काइल हैलाइड कंटेनिंग 4 और मोर कार्बन एटम कैन एग्जिबिट chain isomerism, while alkyl halides having 3 or more carbon atom can exist as different can show different position isomerism. तो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमेरिज ऑफ एन एल्काइल हैलाइड इज इक्वल टू 2n-2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कोई भी जो एल्काइल हैलाइड है वो कितने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज शो करेगा, उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला 2n-2, और n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशंस करेंगे एल्काइल हैलाइड्स के। थैंक यू।